जैसे कि दोस्तों हमने लास्ट वीक देखा कि हम लोग सॉइल मैकेनिक्स से मैंने आपको स्टार्ट किया कि पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू सॉइल मैकेनिक्स। आज मैं जो आपको सिखाऊंगा वो आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। सो दोस्तों बिना देरी किए हुए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। तो दोस्तों की जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने सॉइल के बारे में पढ़ा कि कितने तरीके के सॉइल होते हैं और सॉइल का फॉर्मेशन कैसे टेक प्लेस होता है, तो उस प्रोसेस के बारे में जाना। आज हम ये पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी हम किसी भी सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट में हम देखते हैं तो सबसे पहले हम कोई भी कंस्ट्रक्शन से पहले, ठीक है, हम सबसे पहले सॉइल का टेस्ट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। क्यों प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर सॉइल पे हम वो कितना लोड दे सकता है या कितनी फोर्सेस एक्ट करेंगी कि हमारी जो बिल्डिंग की स्टेबिलिटी है, जो हमारे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है, वो लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन रहे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। जैसा कि हम सब जानते हैं सॉइल में एक मैटर वी ऑल नो दैट मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स, आइदर इट कुड बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉइल जो है, सॉइल की कॉन्स्टिट्यूएंट है, वी विल द बेसिक मैटर में एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट सॉइल। अ सॉइल मास in natural state, we first analyze how we classify soil, means understand the properties of the soil. So as I told you, the soil exists in three phases, see, and these phase diagram help us in the classification of the soil. So whenever we are talking about the soil mass, whenever we are talking what is phase diagram is a pictorial representation of the soil structure. What is phase diagram? Phase diagram is a pictorial representation of our soil structure. So when I'm talking about the soil in its natural state, means कि when we are analyzing a soil, when we are analyzing a particular soil and when we are considering it in a natural state, the soil will exist in the soil phase will exist in three forms. Soil is basically made of three constituents. It is first is air, second is water, and third is a solid grains. So whenever you are considering any soil, whenever you are considering any soil in its natural state, means अगर हम उसका अगर original structure अगर हम classify वो करें तो it will exist in three phases. What are the three phases? It's constituent made of air, water and solid. So जैसा कि मैंने आपको बताया, when we are defining soil in its, suppose ये हमारा soil structure है, ठीक है। अब मैं अभी जो आपको बता रहा हूं वो हमारा सॉइल मैं कंसीडर करो एक सॉइल नेचुरल स्टेट में, तो इट विल मेड ऑफ थ्री कंस्टिट्यूएंट। व्हाट इज? फर्स्ट इज आवर एयर, सेकंड इज आवर वाटर एंड थर्ड इज आवर सॉलिड्स। ओके, सो किसी भी व्हाट इज दिस इज कॉल्ड आवर फेज डायग्राम। व्हाट इज फेज डायग्राम? फेज डायग्राम इज अ pictorial representation of the soil structure. When we are analyzing any soil, when we are analyzing as a soil and we are considering it, then our soil will consist, every type of soil will consist of three constituents. It is first is air, second is water and third is solid. And दोस्तों जो भी हमारी properties of the soil, the phase diagram is very important because in order to learn every properties of the soil, so phase diagram will help us in defining the every properties of the soil. So जैसा कि मैंने आपको बताया कि soil in its natural state consists of three constituents. It is air, water and solids. Okay, जैसा कि आप देख सकते हो, when I considering any soil, it is containing water, it is containing solid and these are our air voids. Okay, now what is phase diagram? Soil mass in general is three phase composed of solid, liquid and gas method. A three phase system is applicable for partially saturated soil, whereas the two phase system is used for saturated and dry state of soil. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर फेज डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा सेकंड चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, इसमें सिंपली आपको फेज डायग्राम को रिमेंबर करना, उसका ग्राफ, एंड आप हर प्रॉपर्टीज को आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो अगर आपको ये पता है कि फेज डायग्राम जो है वो उसमें सॉलिड के जो हमारे सॉइल के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तीन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एयर, वाटर एंड सॉलिड, और उसी को जब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं दैट इज कॉल्ड आवर फेज डायग्राम. Now, the soil in its natural, this is called the soil
नेचुरल स्टेट, दिस इज कॉल्ड द सॉइल नेचुरल स्टेट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एक ऐसी टॉपिक है जो आपके हर कंपिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी कि आपको सिंपली प्रॉपर्टीज सब रिमेंबर नहीं करनी। आपने अगर फेज डायग्राम को अगर रिमेंबर अच्छे से कर लिया, आपसे ये एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है इसमें कि व्हाट इज फेज डायग्राम। फेज डायग्राम इज अ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ सॉइल मास इन इट्स नेचुरल स्टेट, एंड according to the phase diagram we can further classify the phase diagram. Through the phase diagram we can further classify the soil state into three parts. Okay, so our first one is when the soil mass is composed of three constituent: air, water and solid, air, water and the solid. And दोस्तों हमेशा एक चीज ध्यान दें कि solids क्या होते हैं, solid they are highly dense. Okay, air, water, we always take solid as a stable part. It's a stable part. So we always consider volume of solid is according to the stable, because in every soil solid will remain stable. So ये हम जब फेज डायग्राम का लेते हैं तो फेज डायग्राम में हमें ये याद रखना है कि जो हमारा सॉलिड्स है that part will remain stable. Okay, जैसे कि मैंने आपको बताया, when I'm saying the soil